We used ਅੱਗੇ to. ਵੀ ਵਧੋ ਪਾਏ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ we used to this, we ਤਮਹੀਦ ਨਹੀਂ used to ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ that. ਜਨਾਬ भाईजान यार एक मिनट ना we are reporting your यार parents ये to अंदर child से services. ये अंदर से निकल रहा है अंदर से कैफ कैस आ जाएगी आपको ले जाएगी और आपको फॉस्टर केयर होम में भी डाल देगी, ठीक है? if some other sibling is getting lesson from the father or mother I would run away because I know ਅਗਲੀ that's ਵਾਰੀ my ਆਹੋ even though I didn't do anything ਮੈਂ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ था ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਕਮਖਤੀ ਆਈ ਕਦੀ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਤੇ ਕਦੀ ਭਾਰੀ ਛੱਤ You ਤੇ know, there's a difference if you're a boy or a girl. The girls don't get beaten up in our society. वहाँ पे जो है ना आपने अगर होमवर्क नहीं किया ना तो अगले दिन स्कूल जाने का दिल ही नहीं करता था किसका? बच्चों का वुमन पाकिस्तान में अच्छा। आपने होमवर्क नहीं किया, अभी पता चला कि शामत आएगी, टीचर ने पूछा ना क्यों नहीं किया तो तो यहाँ मार पे क्या पड़ेगी। तो यहाँ पे तो बच्चे ने पूरे हफ्ते का होमवर्क नहीं किया तो फिर भी ऐसे सीना था के जाते हैं। Yeah. कहता फिर मैंने ऐनक उतारी है उसके बाद मैं एक आंख से जो करके खेलता रहा My question to you guys is would, back in our days when we were little Talk about yourself. not little Uh, when we were little we used to get a lot of ass whooping. Yeah, I remember my time. It's studies, it's not eating food, it's not obeying your parents, it's not obeying your papa mama ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਵੱਡੀ मोहल्लेदार ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ it's you are outside playing बर्थडे थे छठे you're playing cricket or something or football or whatever, you come home late, it's you do some badtamizi with your elder siblings, all those things you used to get your ass whooped, right? And it wasn't just normal ass whooping. Yeah. चप्पल वैपर झाड़ू जो हर आ गया घूम के दिखा दो। ये इनको क्या शौक है अच्छा तो होता क्या था कि वी यूज टू बी लाइक आवर जनरेशन मोस्टली यू कैन से वी यूज टू बी we used to have that fear of parents, right? We used ਅੱਗੇ ਵੀ to ਵਧੋ ਪਾਏ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ we used to this, we ਤਮਹੀਦ ਨਹੀਂ used to ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ that. ਜਨਾਬ भाईजान यार एक मिनट ना we are reporting your यार parents ये to अंदर child से services. ये अंदर से निकल रहा है अंदर से कैफ कैस आ जाएगी आपको ले जाएगी और आपको फॉस्टर केयर होम में भी डाल देगी, ठीक है? और कुछ यार बस हो We're गया। not used to your question. मेरा दर्द है ये आहिस्ता आहिस्ता निकलेगा 20-25 साल का दर्द है यार बट लुक द थिंग इज कि हमारे साथ ही बहुत होता था तो हमारी जो जनरेशन थी दे यूज्ड टू बी गुड जनरेशन लिसन बट माँ बाप का खौफ है ये है वो है Good generation. ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ you're not allowed to do that because you have children here ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਦੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਹੋਵੋਗੇ और उसकी वजह से okay maybe you guys have little kids but the kids who are 18 19 whatever वो सही नहीं निकल रहे अब जो आज के भाई फोटोकॉपी मशीन खराब हुई है, सही नहीं निकल रहा है क्या? यार ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਚਰਚਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਦਾਰੂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਪੁੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਸਹੀ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਲਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ सवाल ही खत्म। कसम है यार। No, but what do you guys think about as like As whooping. what do you guys think about being strict to your children? Are we talking about parenting now? Yeah, let's talk about parenting. You all parents, right? The parents? Right. Why, man? So what do you think about parenting these days? Your parents' parenting versus your parenting. What's the difference? What are goods and what are bads? ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਰੇ ਆਏ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ मेरे भाई की एक टांग थी। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਪਲੇਅਰ because this happened to me seriously नमाज that पढ़ते हैं भाई। if some other sibling is getting lesson from the father or mother I would run away because I know ਅਗਲੀ that's ਵਾਰੀ my ਆਹੋ even though I didn't do anything ਮੈਂ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ था ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਕਮਖਤੀ ਆਈ ਕਦੀ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਤੇ ਕਦੀ ਭਾਰੀ ਛੱਤ You ਤੇ know, there's a difference if you're a boy or a girl. The girls don't get beaten up in our society. The boys do. which society are you talking about?
No, but the thing is, जनरली पाकिस्तानी बीटन के सोसाइटी अलावा बीइंग स्ट्रिक्ट लाइक ऊंची आवाज में बात करना, इधर करके खाओ जरा, करो आप घर में या ऊंची आवाज में बात, अगले दिन स्कूल में जाके बच्चा बताएगा यार ताकि इतनी बात भी नहीं होती, बहरहाल ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते। चलो नहीं इतना तो कर सकते हैं भाई। यार कितनी ऊंची आवाज में कर यार लोगे? टीचरें डांटती हैं, क्या हो गया भाई? मतलब कितनी ऊंची आवाज में आपको चाहिए? कान का पर्दा फाड़ना है? ये चाह रहा है कि अच्छा मार स्पीकर भी सकते हैं लगा आप? नहीं मार तो बिल्कुल नहीं सकते। क्यों नहीं सकते? नहीं मार सकते क्यों? भाई लो, नहीं मार सकते आप। मारना चाहिए? मेरे ख्याल से नहीं मारना चाहिए, क्यों? क्योंकि जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? क्योंकि यार अगर आपको एक जो है ना बच्चा ढीठ हो जाता है, अगर आप जिसको जितना मारेंगे ना, मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, मुझे आज तक मारनी पड़ी, उई! आज तक मुझे मारनी पड़ी। कौन सा गोला से आए हो आप? हाँ, क्योंकि मेरी भी पेरेंटिंग ऐसे ही है। मेरे वालिद साहब है ना, सिर्फ एक दफा लाइफ में मार पड़ी, बस एक दफा। अम्मी से? नहीं, अब अम्मी ने तो कभी चूं तक नहीं किया, ओ तेरा परा। ठीक है। तो चलो। मेरे दोनों जो पेरेंट्स, उन्होंने मुझे कभी ना मुझ पे ना मेरे भाई पे कभी हाथ नहीं उठाया। तभी आप ऐसे नाजुक से हैं। बस इसलिए मेरा थोड़े मम्मी डैडी है, लेकिन ऐसा कोई जरूरत नहीं पड़ती। और जो मेरे दूसरे दोस्त उनको मार पड़ती थी। अच्छा मजे की बात है, मुझे टीचरों से ज्यादा पड़ी है। टीचरों से उन्होंने डंडे मारे हैं, कसर वहाँ पूरी हो गई। थप्पड़ इतना नहीं मारा, लेकिन है जो थोड़ी बहुत पड़ी भी है वो टीचर से पड़ी है। लेकिन इवन टिल नाउ ये नहीं कि मैं उनको डिसरिस्पेक्ट करता हूँ कुछ भी। तो मैं इसलिए मैं ये मानता हूँ कि भाई अगर मेरा भी यही था कि भाई अगर जो होता है ना, एक बाप का रौब होता है, एक माँ की मोहब्बत होती है, ठीक है आप शरारत करते हो, ये करते हो, वो करते हो, लेकिन स्टिल वो एक वालिद का इतना रौब था दिल में कि कुछ करने का दिल नहीं करता, या करते ही नहीं थे। अगर शरारत भी होती थी, बस अब्बा ने एक दफा बोलना है तो चुप बैठ जाना है। बच्चे की तबीयत पे भी होता है, ठीक है। हो सकता है कि कुछ जो शरारत तबीयत के होते हैं वो नहीं सुनते। यार ऑब्वियसली बिला वजह तो कोई नहीं मारता, लेकिन बात तो यही है ना। बिला वजह मारते क्यों? क्यों? आप खुद बोल रहे हैं कि भाई को पड़ी होती थी तो मैं भी भाग जाता था। नहीं, वो बिला और वजह उसको तो पड़ती कम थी मार ना। पड़ी है, ज्यादा पड़ी चाहिए थी। मुझे तो ज्यादा पढ़नी चाहिए थी। आज हमको पता लगता है क्यों पढ़ती थी। अभी कसर पूरी करते हैं। नहीं लेकिन ये आई एम अ बैड एग्जांपल, आई एम अ वेरी बैड एग्जांपल। You are a very bad example in everything. We can even consider your example. तो इसलिए अगर मेरे भी बच्चे होते हैं, मैं उनको आए ये चलो बंद भी करो। नहीं होएगा आप। तो ये ठीक है। यार ਤੁਸੀਂ टेस्ट कर लो पहले। अच्छा तो आगे कुछ बोल रहे थे आप, आपको नहीं पड़ी तो फिर मैं भी जब अपने जो बच्चे वगैरह हैं उनको फिर कोशिश करता हूँ कि उन पे, अब ऊपर से एक और डिफरेंट है कि मेरी 2 बड़ी बेटियां हैं, पहली हो गई, उनके साथ कम्प्लीटली डिफरेंट। उनको आप यूं थोड़ा भी देखो, वो इतनी सेंसिटिव है कि वो पूरी हिल जाती है, ठीक है ना। तो ये मारना तो दूर की बात है, उनको आप ऐसे गुस्से से कुछ बोल दो या सख्ती से कुछ बोल दो तो वो वैसे ही रोना शुरू कर देती हैं, वो वैसे ही इतना सेंसिटिव है। अच्छा इसमें यार एक चीज़ है कि शायद हम अपनी एग्जांपल्स को उस बीच में ना लाएं, क्योंकि हमारे बच्चे भी इतने बड़े नहीं हैं कि उन एजेस में नहीं है कि वो आपों बाहर हो ना। वो जो एज शुरू होती है वो तो तब होती है ना, अब हम भी जब छोटे थे तो हम ये थोड़ी है कि बचपन से मारी खा रहे हैं। अब जो आपके बच्चों की एज है उसमें थोड़ी हम मारे खाते थे। लेकिन जब आप उस एज को पे पहुंचते हो, जब आपकी थोड़ी मर्जी शुरू होती है कि अब मैं अपनी मर्जी से ये करूं, मर्जी से क्रिकेट, यानी फर्ज करो बाहर खेलने पे प्ले ग्राउंड चला जाऊं। अब आपके बच्चे तो नहीं जाते, खुद आप लेके जाते हैं ना। तो अभी उनको इतना इंडिपेंडेंस उनको नहीं मिली कि वो ऐसी कोई बात करें जिस पे आप मारें, तो वो तो आप उसे कंसिडर नहीं ना कर सकते। लेकिन जनरली जो अब फर्ज करें मैं बाहर जाता हूँ, बच्चों को भी मारते हैं भाई, जो 3 साल 4 नहीं पढ़ती भाई, 3-4 साल के बच्चे नहीं यानी टिका देते हैं ना। अगर कोई ज्यादा तंग कर रहा है, कुछ कर रहा है, या 5 साल का हो गया, 6 साल 8 साल का हो गया, ठीक है, हाँ, टिका देते हैं देते ना। हैं। ऐसा तो नहीं है कि भाई वो रुकते हैं। अगर वो कोई जिद कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि भाई कोई लिमिट है हाँ, तो वो तो लगा देते हैं। तो वो तो बात सही नहीं है ना कि आप कह रहे हैं कि नहीं छोटी एज में नहीं करते। नहीं छोटी एज का मतलब यही है ना, 3, 4, 5 साल को तो नहीं आप करते ना। अब 8, 9 में बच्चा जाके थोड़ा इंडिपेंडेंट होना शुरू होता है, तब तो आप उसे डांटते हो या हल्का सा जिसने टका दी। मैं ये नहीं कह रहा कि नीचे रख के मारना है, उसके दांत तोड़ देने हैं, लेकिन कहने का मतलब है छोटा टिकाना का मतलब यही होता है। अब आज के दौर में आप टका सकते हो, मुझे ये बताओ, 8-9 साल बच्चे को टका सकते हो? मैं मारने की बात नहीं कर रहा, यानी जबरदस्त किस्म का, लेकिन बाय लो नहीं, बाय लो यार बात देखें, ये मेरे ख्याल से आपकी परवरिश का हिस्सा होता है। अगर ना होता ना तो ये चीज यहाँ पे भी प्रैक्टिस ना की जाती।
यूके के अंदर, यहाँ पे भी पहले लोग बच्चों को मारते थे या बच्चों को धमकी देते, पुलिस ले आके मारते थे बच्चों को, एक तो स्मैक कर दिया उनको, मुझे बाबों ने बताया, गोरों ने। तो यहाँ पे तो बाय लॉ उन्होंने कह दिया ना, और ये इसके पीछे भी इनकी एक प्रॉपर, आप उसको थ्योरी बोल लें, आप उसको अपना कोई कंस्पिरेसी बोल लें, कुछ भी आप बोलना चाहें, उसको एजेंडा बोल लें, कि इन्होंने अब बच्चों को बागी करना ना माँ बाप से भाई। किस लिए? कि फोर्स है ना, नौजवान जितना बच्चा यंग एज से काम शुरू करेगा, इंडिपेंडेंट होकर, उतने पैसे सिस्टम में आएंगे, जितने पैसे सिस्टम में आएंगे उतना ही मुल्क फ्लरिश करेगा। तो ये यहाँ पे बाय लॉ तो इसलिए इन्होंने बंद किया हुआ है कि भाई बच्चे अगर आपको कहते हैं, अब क्यों बच्चे छोड़ देते हैं माँ बाप को? बैक इन द डेज मुझे आप किसी जो यहाँ पे मतलब 70-80 साल के बाबे हैं या माई हैं ना, आप उनसे बैठ के पूछो, आपको बताते हैं हमारा भी ये कल्चर था। हम रात को बैठ के एक ही टेबल पे खाना खाते थे, एक ही टाइम पे टीवी देखते थे और इंटरेक्शन हमारी होती थी। अब वो नहीं है। अब तो बच्चे 13-14 साल का होता है, वो कहता है ओके सी यू लेटर। तो ये मारना मेरे ख्याल से कितना लेकिन एक नहीं है। रोब और दहशत एक उस जमाने में थी पेरेंट्स की और टीचर्स की भी, जैसे आपने बोला। अब वो नहीं टीचर्स है। मारते थे हमें यार स्कूल में। अब वो नहीं है। हाँ। हमें तो ये नहीं हुआ। एक दफा लिटरली ऐसे हुआ कि मैं साथ दोस्त बैठा हुआ था, वो हम किताब से पढ़ रहे थे ना, उसकी किताब थी पाकिस्तान स्टडीज की, तो पढ़ रहे थे, तो उसमें पता नहीं बीच में उसने को मजाइया लफ्ज बोले ना, सारे इकट्ठे पढ़ते थे पूरी क्लास, रट्टा नहीं मारते, तो उसने को बीच में मजाइया बोला, मैंने कहा हाँ हंस दिया। उसने दोबारा बोला, मैं थोड़ा ज्यादा हंस गया। टीचर कहीं दूर से देख रहा था उसका, फिर उसने हंसी रोकी इसकी। भाईजान वो ऐसी हंसी रोकी मेरी, वो मेरे पास आया आके, मैं ऐसे था ना, तो उस दोस्त ने ऐसे देख लिया, तो वो कहता सर आ गए। मैंने ऐसे देखा, सर कहते खड़े हो जरा। पायन में खड़ा हो बहन ने और दूसरी बंदे ने मुझे बाजू से पकड़ा, और इधर दीवार थी, जिससे पीछे दीवार है, उसने उसमें ठा करके मारा, और वो मैं नीचे गिर गया जान के कि यार मुझे दोबारा ना मारे। उसने कहा नहीं उठ दोबारा, उठ के फिर मारे। अपने पाँव पे खड़े होके दिखाओ। पूरी WWF हो रही थी और वो सामने दरवाजे से, क्लास के बाद जो दरवाजा होता है, वहां से लड़कियां गुजर रही थी स्कूल की, और वो अंदर देख के ना की कह रही हैं, और बाद में मुझे पता लगा कि वो कह रही हैं कि यार देखो उसको मार पड़ी है वो। तो मैंने कहा यार सर ऐसे तो ना करें ना। फिर लेकिन वो सर अच्छे थे अच्छे थे। कब मारा? उन्होंने मेरी टांग लगवा के दी नकली। वो कहता उदय भाई दिल के बहुत अच्छे हैं, इन्होंने मेरी टांग लगवा के दी। तो वो अक्सर ऐसे होता था क्लास में, इस तरह कुछ। लेकिन पाकिस्तान में बहुत कम हो गया, अब नहीं होता। अभी देखा कम हो गया। अभी आप नोटिस करना, आपके बच्चे भी बड़े नहीं है, लेकिन इधर आप नोटिस करना, बच्चों को अभी स्कूल जाने का शौक है। हमें नहीं था, हमें बाहर कुट के कैसे भी जैसे करके, मुझे नहीं पता, लेकिन ज्यादातर जो बच्चे हैं ना वो स्कूल जाना चाहते हैं। वो क्यों जाते हैं? और उनको और पढ़ाई भी करते हैं और कुट भी नहीं पड़ती। वो अभी क्या करते हैं, स्कूल में उन्होंने एजुकेशन चेंज कर दी है, उन्होंने उसको इंटरेस्टिंग बना दिया। अभी मैं LGBTQ नहीं वो LGBT तो वो स्टडी को फन कर दिया ना। वो सुपर खेल में पढ़ाते हैं। खेल में बताते हैं भाई ये अपना खेल में खेल हो जाता है। अच्छा ये बात बड़ी अच्छी इसने बताई है कि वहाँ पे जो है ना, आपने अगर होमवर्क नहीं किया ना तो अगले दिन स्कूल जाने का दिल ही नहीं करता था। किसका? बच्चों का, वुमन पाकिस्तान में। आपने होमवर्क नहीं किया, अभी पता चला कि शामत आएगी, टीचर ने पूछा ना क्यों नहीं किया, तो मार पड़ेगी। तो यहाँ पे तो बच्चे ने पूरे हफ्ते का होमवर्क नहीं किया, तो फिर भी ऐसे सीना था के जाते हैं। यार अच्छी बात नहीं बता बच्चे आओगे भाई यार होमवर्क कराया करो। उनका हफ्ता होमवर्क नहीं करते यार। नहीं, ये बात उसने बड़ी अच्छी, ये पॉइंट बड़ा अच्छा किया इसने। नहीं तो जब ओबीसी बच्चे को मारनी पड़ेगी, होमवर्क नहीं करेगा, काम ही नहीं करना, तो दिल तो करेगा ना उसके जाने। ये उसने अच्छा पॉइंट नहीं दिया, ये उसने बताया कि मैं आई वाज अ बैड एग्जांपल। तो आपके बच्चे बैड एग्जांपल ना बनाओ भाईजान, उनको काम कराओ। लोग मैं अपने मेन चीज ये है कि इतनी सख्ती होनी चाहिए जो बच्चों को डिसिप्लिन करे। ये शुरू से रही है। हाँ, हमारे कल्चर में थोड़ा ज्यादा ही कर देते थे कि चलो जेडी चीज अच्छा ही फाड़ के ठा। वो मेरा दोस्त कहता मैं घर आया, पता नहीं लेट आया, क्या बता रहा था, कहता मैं घर लेट आया या पता नहीं क्या हुआ। हाँ, कहते मेरे नमाज के बाद ना, नमाज पढ़ने गया तो अब्बू ने वापसी में देखा तो मैं था नहीं, मैं स्नूकर खेलने चला गया था। कहता मैं जल्दी से दौड़ लगाई, मैं घर पहुंचा अब्बू से पहले ना, तो कहता अब्बू घर आए, कहते अब वो ऐनक पहनता। कहते अब्बू, कहते किधर था? कहता अब्बू मैं मस्जिद था। कहते मैंने तो फटाफट सलाम फेर के देखा, तू नहीं था। कहते नहीं अब्बू मैं था। कहता नहीं तू नहीं था, तू कहीं और था। तो कहता इधर आ साइड पे खड़ा हो।
कहते मैं ऐनक पहनी थी, बड़े बड़े प्यार, कहते ये ऐनक उतार के साइड पे रख। खर्चा कहते जब उन्होंने कहा ना ऐनक उतार, कहते पहले मैं थोड़ा था, मैंने कहा यार चलो छोड़ दें, जब उन्होंने कहा ना ऐनक उतार, कहता फिर मैं भाईजान मुंह में आ रेडी हो गया। गया। कहता फिर मैंने ऐनक उतारी है, उसके बाद मैं एक आंख से जोकर खेलता रहा। कहता मैं सारी आज तक ऐसे खेलता हूँ। तो कहने का मकसद है कि वो एक्सट्रीम दूसरी एक्सट्रीम थी, को इतना खौफ बिठा दो बच्चों के ज़हन में कि वो बच्चे आपसे कम्युनिकेट ही ना कर पाए। पाकिस्तान में हमारे कल्चर में ये होता है ना, क्या माँ बाप से कम्युनिकेशन गैप रह जाता है, क्योंकि आपको पता है जेडी गल पूछी चपेड़ी पहनी है। और इस तरफ इतना ऑपोजिट है कि माँ बाप यानी बच्चे बड़े होकर लड़े होते हैं माँ बाप के ऊपर। यानी मैंने उस दिन पता नहीं मैं कहाँ था, लिडल था, हाँ लिडल था, तो मैं उससे क्यू में खड़ा हूँ, उस बच्चे ने कुछ लेना होगा, उसकी माँ ने उसे नहीं लेके दिया। अब क्योंकि उसे डिसिप्लिन का खौफ ही नहीं है, उसे पता है ना मुझे को मार सकता है ना मुझे कुछ कह सकता है। वो उस लेन में खड़े होके, पीछे पूरी लाइन खड़ी है लोगों की, माँ को बदतमीजी से यानी ऐसे ऐसे लफ्ज बोल रहा है, ओ ABCDFMNOP सब निकाल दिया पूरा उसने, अल्फाबेट। और वो लिटरली उसे कुछ कह ही नहीं पा रही। गोरा था। हाँ गोरा, तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या कह सकती है, बिहेव योरसेल्फ। नहीं, गोरे में यार डिपेंड होता है कौन से गोरे। मैं गोरों को जानता हूँ, उनके बच्चे में बड़ी तमीज है, क्योंकि वो यार उनकी तरबियत भी होती है ना। डिपेंड होता है कि आपके कौन से क्लास के गोरे हैं। एक और ये भी चीज़ है कि वो खुद कि उनके यहाँ पर जितने आप गोरों से मिलते हैं वो खुद नहीं स्कूल गए होते हैं, वो खुद नहीं इतने पढ़े लिखे होते हैं, अक्सर सिंगल पेरेंट्स होते हैं। तो उनका मैंने खुद सुना है कि भाई वो जो एक बच्चे को अपने माँ बाप था उसके साथ, तो वही FN लगा हुआ था। बच्चा होगा मुश्किल से 5-6 साल का, तो बच्चा भी गालियां दे रहा है, बाप भी गालियां, और वो बस में बैठा है। अब वही सब पब्लिकली हर कोई सुन रहा है। तो ये अगेन वो क्लास का भी आ जाता है इनमें कि इनके अपने बच्चे खुद भी ये स्कूल नहीं जाते और उनको कोई अहमियत भी नहीं होती। उनको पता है यार हमने बस भेजने, ठीक है, नहीं गए तो अल्लाह खैर सलाम। इनमें भी इतनी टेंशन नहीं होती। तो अगर थोड़े पढ़े लिखे गोरे हैं वो डिफरेंट है, उनके बच्चे डिफरेंट है, उनमें तमीज़ है, वो भाई बोलेंगे एक्सक्यूज मी प्लीज थैंक यू, ये वो सारा कुछ होता है इनमें। लेकिन वो फिर डिफरेंट क्लास के बच्चे। लेकिन बात वही आ गई ना कि जो बच्चे नहीं हैं, बात तो मैं वही कर रहा हूँ कि जो हैं उनको तो जरूरत ही नहीं है, उनको तो छोड़ दो, उस लिस्ट से निकाल दो। लेकिन जिनको डिसिप्लिन की जरूरत है उनको भी आप यहाँ पे नहीं कर सकते, तो जिस तरह हमें कर सकते थे या पहले बैक होम कर सकते। फुरकान भाई आप बताएं, आपको कभी कोई 1-2 स्टोरियां सुनाए, सिर्फ 2 सुना दें क्योंकि हम डराना नहीं चाहते। कोई ऐसा उतरवाई हो आपकी कोई स्कूल में? मेरा ख्याल है स्कूल में तो खैर बहुत ही मार पड़ती थी, और मोटे लकड़ी वाली सोटी से टेप चढ़ा लेट आने पे यार, लेट आने में मेरा क्या कसूर है यार? वाले साहब ये कारण नहीं छड़ के जा रहे, याद है वो सर होते थे, सर बुखारी, वो सुबह सुबह जाना भाईजान, तकरीबन उनकी 20-25 लड़के ऐसे खड़े होते थे, वो आता लाइन से हाथ निकालो उठाओ, हाथ निकालो उठाओ, जो और लेट आता था उसको 2-2। अच्छा है शुगल में? हाँ शुगल में, सर बुखारी भाईजान, कितने मिनट लेट हो? 5 मिनट लेट हो। अच्छा पूछता था कितने में लेट आए? सर 5 मिनट। एक कितने में लेट थे? 10 मिनट। 2 ऐसे करके। मैथ का टीचर था एक, मैथ में ना वो सवाल पूछता था कि जनाब x = y and y। उसने सवाल पूछना, मैंने जवाब दे देना बगैर हाथ खड़े किए ना। अच्छा वो कहता था जो ये सवाल का जवाब देगा मैं उसे खोला पिलाऊंगा, ऐसे बोलता था। वो हम ब्रेक से ही वापस आए जनाब, उसने सवाल का जवाब पूछा, अब उसने सवाल लिखा ना, मैंने हाथ खड़ा कर बगैर ही बता दिया, जवाब दे दिया। कहता नेक्स्ट टाइम नहीं करना। ठीक है। अब वो फिर उसने कोई सवाल पूछा, मैंने फिर बता दिया, वो निकल गया ऐसे स्टैंड अप। वो भाईजान उन्होंने मैंने चुक के मारे है, मारे है जमीन पे, कंधा और रेहान भी साथ ही था। उसने आके फिर उसे दिखा दिया, कहता तू पागल हो गया, क्यों मार रहा है उसे? वो कहता हिम्मत कैसे हुई मारने की? आपने दिखा दिया, वो जाके सीधा लगा ब्लैक बोर्ड पे, मेरे भाई को मार रहा है। ये तो आप उधर डिसिप्लिन कर रहे हो, अपोजिट उस्ताद को डिसिप्लिन हो रहा है। हाँ, तो वो चला गया प्रिंसिपल के पास, मिस माजमीन के पास। उससे जाए कहता है अपना इसने जो सा ना मेरे पे हाथ उठाया। वो कहता मिस और रिहान को बुलाया, मुझे बुला लिया, क्या हुआ? कहता ये पागलों की तरह मार रहा था उसे, जान से मारना था। सवाल का जवाब देने पे यार सिर्फ, ठीक है ना, इतना वो अच्छा ना देने पे तो सुना था, सवाल का जवाब नहीं दिया, वो देने मारी जा ये रहे। होता है मसला अथॉरिटी का, अथॉरिटी की गलत इस्तेमाल करना, मिसयूज करना, ये बड़ा मसला है कि आप लिमिट कैसे लगाएंगे। पूछूंगा अब आपने जवाब देना है। वाई
तो घर में बहरहाल बहुत मार पड़ती थी यार। घर में जो मेरे से छोटे वाला है उसके ऊपर कोई अल्लाह का खास फजलो करम था। वो कुछ भी होना यार उसका सर फट जाना। अब आप उसकी लिटरली टेंड कराओ ना तो उसके बड़े निशान पड़े हुए हैं सर के ऊपर ना, टांकों के। अच्छा तो एक दफा तो ऐसे हुआ यहाँ से उसका ना सर फट गया, खेलते हुए उसको कोना लगा तो सर फट गया। वो फिर उसके बाद हम सारे लोग इकट्ठे हुए थे मॉल्टन में ही, दोबारा खेल रहे, फिर कहीं पे उसको दिखा लगा नीचे गिरा, फिर वहीं से फट गया जहाँ पे पहले टांके लगे हुए थे। फिर इसी दफा ना ऐसे जमीन पे बैठ के ना ऐसे ही खेल रहा था, मैं पीछे से आया, मैं उसके सर के ऊपर ही पाँव रख के चला गया। मैं क्या वो देखा फिर सर वहां से फट गया। यार अल्लाह की नहीं आपकी गड्डी थी यार। ऐसे अल्लाह को ब्लेम कर रहे हैं। भाइयों की कर रही है। हाँ, भाइयों की गड्डी है। मामू आ गए जनाब, मामू को डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता था। किसने किया? मामू मुर्गा बन जो, मुर्गा बन के जूतियां मारते थे, कहते अगर कान छोड़े तो रीसेट। हाँ मतलब जूतियां मारी और कान नहीं छूटने चाहिए आपको, कान ऐसे नहीं पकड़ने होते टांगों के दरमियान से। तो वो यार वो बड़ी ठुकाई होती थी बाहर। लेकिन ठीक है यार, आई थिंक कोई मतलब अगर मैं देखूं अब कि क्यों मारते थे तो समझ में आती है यार डिसिप्लिन करने की। लोग शरारती भी उस टाइम में थे ना, अगर वो शरारती बच्चा उसे कुट पड़ेगी। लेकिन ना मेरा ख्याल है जो ना पढ़ने पे कुट है ना, क्योंकि मुझे याद है पंजाब कॉलेज शुरू किया ना तो हमारा वहाँ कोई टीचर लग गया नहीं, मेजर साहब, एक्स मेजर था वो पता नहीं क्या सब्जेक्ट पढ़ाता था भाईजान, उसने आर्मी स्टाइल की पनिशमेंट्स। तो वो मशहूर था कि भाई इसकी क्लास, किसी क्लास में गए हो, उसकी क्लास में भाई वो तो भाईजान उसने क्या करना आपको, नहीं किसी टेस्ट आपने दिया, उसमें जो भी परसेंटेज उसने सेट की हुई है, अगर उससे कम मार्क्स आए हैं आपके, उसने आपको कहना है आप इस चेयर से उठो, चेयर अपने सर पे उठाओ, वो चेयर, और वो भारी चेयर थी वो जिसके साइड पे वो भी होता है जिसमें लिखना होता है, उसने कहना अपने सर पे उठाओ, मुड़ो और पीछे जाके दीवार के साथ उधर मुड़ करके खड़े रहो जब तक मैं नहीं कहूँगा। और अगर वो 1 घंटे की क्लास है ना तो आप 1 घंटा वो सर पे रख के खड़े हो। मेरी गर्दन छोटी हो गई थी सब कुछ ये सजा बेहतर है, मार से सजा बेहतर है। शायद उसको पता नहीं था कि कुर्सी पे बैठना होता है, कुर्सी को सर पे नहीं रखना। लेकिन ये आप लोगों के लिए बड़ा शौक है भाई, उधर स्कूलों में कॉलेजों में ये चीज, अब मुझे नहीं पता लेकिन उस जमाने में आम थी, बहुत आम थी उस कल्चर में ये चीजें, क्योंकि वहां पे खब्त था इंजीनियर डॉक्टर है फलाना फलूना ना ये होता है ना, तो माँ बाप भी कुछ नहीं कहते थे। यानी माँ बाप को होता था साडा पुत्र इंजीनियर बनना चाहिए, तू मार। हाँ ओ भाई उधर कोई आपके साथ कोई रोला हो गया, आप घर जाके बताओगे अम्मी आएंगी ना, मैं पूछती हूँ जाके, टीचर आगे से कहेगा पढ़ता है हाँ आप इसे 4 और लगाए। सही है। तो वो जो हमारे कल्चर में जो एक चीज थी ना कि पढ़ना है और अच्छे नंबर लेने हैं, और यानी वो बच्चे की साइकी को समझने को नहीं कि बच्चा करना क्या चाहता है जिंदगी में, वो बस तूने बनना ही इंजीनियर है। ये तो आपको पता है मशहूर है, फिल्में भी बनी है इस पे। वो मुझे याद है मैं छोटा था तो मैं आराम से आया था पीछे वो कहीं उसकी गाड़ी पे लिखा हुआ था, वो यूईटी से पढ़ता था तो उसकी गाड़ी पे यूईटी का स्टिकर लगा हुआ था। मुझे रोज वो स्टिकर दिखाया जाता था और रोज बताया जाता था कि वो देखो फलाना जेड़ा है इंजीनियर है और पढ़ा भी उथों है, तो तुसी मार्क्स ही उन्हें लेके आने उथे पढ़ना है। इंजीनियरिंग डिग्री तो आपने नहीं की? मैं दूर से नहीं गुजरा मैं उस कॉलेज के साइड से गुजर रहा था। यार ये जब बंदा 3 इडियट्स देख रहा होगा इसका क्या हाल हो रहा होगा, वो भी तीनों इंजीनियरिंग डिग्री कर रहे थे। तो वो कहने का मकसद ये, आप बच्चे को पहले तो ये बच्चे की साइकी पढ़ना जरूरी है ना। तो अभी आप जो यहाँ पे कह रहे हो ना कि गोरे हैं कई जिनके बच्चे अच्छे हैं डिसिप्लिन हैं, या इवन के हम लोग भी अगर अब बात करें तो हाँ आप अब की जो जनरेशन है ना जिनके अब बच्चे पैदा हो रहे हैं वो उन्होंने अपने आप को एजुकेट किया। अब आप यहाँ पे बहुत से एशियन जो बच्चे हैं फर्स्ट जनरेशन उनको और ये डिस्कस करते देखते हो कि हमारे साथ जो सख्ती हुई है या हमें जो बताया गया है तूने इंजीनियर बनना है, वो गलत है। आप बच्चे को समझो वो उसका इंटरेस्ट क्या है, वो करना क्या चाहता है। अगर वो अब कैपेसिटी भी है कि नहीं, हाँ कैपेसिटी भी है कि नहीं। वो परसों चौथ में कहीं गया हुआ था नॉटिंघम, तो वहाँ एक बंदा मुझे मिला, वो कहता मैं ओमान से कल आया हूँ ना। मैंने कहा ओमान क्या करते हो आप? कहता मैं क्रिकेट ओमान नेशनल क्रिकेट टीम में हूँ। पाकिस्तानी था और यहाँ का बॉर्न यहाँ का ब्रॉटअप ये वो सारा ना। तो मैंने कहा यार यहाँ के तो पेरेंट बड़ा इंजीनियर फुट डॉक्टर फलाना फलाना फलाना, तो आप क्रिकेट में वहाँ सही है। कहता हाँ ठीक है ज़बरदस्त है मेरे, यानी उन्होंने समझ लिया कि भाई इसका वो है। क्योंकि पाकिस्तान में आप देखो तो जो ज़्यादा क्रिकेटर्स हैं आपकी टीम में दे आर फ्रॉम वेरी बैकवर्ड, यानी यहाँ गाँव से आते हैं या ये वो कि यार सड़कों से खेलता सी तो क्रिकेटर बन गया। कोई आप बहुत कम देखोगे किसी ने MBA किया हुआ है या कोई बहुत पढ़ा लिखा है जो क्रिकेट में आ रहा है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि वहाँ पे माँ बाप कहते हैं क्रिकेट जाएगी करना, तू इंजीनियर बन, तू फलाना बन, तू ये बन, तो वो कैरियर आपका सेलेक्ट करते हैं। एक और बड़ी वजह ये भी है कि आप मुल्क को भी तो देखें ना। आप ये है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, पाकिस्तान है थर्ड वर्ल्ड कंट्री, तो आपने फिर वो भी देखना है कि उधर सर्वाइवल कैसे होगा। यहाँ पर हम लोग
यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है, इधर आप काम ना करें, आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। पाकिस्तान में ऐसा होता है? नहीं आप सरवाइव कर सकते हैं? नहीं एक सिंगल औरत सरवाइव कर सकती है? तो आप ये भी देखें ना कि वो उनकी साइकी क्यों बनी हुई है, क्यों बनी? कि ये भाई उनको पता है कि ये बंदा जाएगा, काम करेगा, ये इंजीनियर डॉक्टर बनेगा, तब जाके ये थोड़ा सक्सेसफुल होगा, हाँ, पैसे आएंगे तो फिर ये फैमिली चला सकेगा। उसको पता है कि भाई यही सहारा है सारा कुछ, इसने या तो बिजनेस करना है, या काम करना है, या पढ़ाई करनी है, या बैंकर बनना। बैंक का पता नहीं अभी क्या है, लेकिन पहले ज़माने में बैंक की जॉब ऐसा होता था, पता नहीं क्या जॉब है, कि बेस्ट जॉब है बैंक की। तो आप ये भी देखें ना कि साइकी क्यों बन रही है, और यहाँ पर क्यों चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ पर ये इट्स जो अभी की जनरेशन वो बॉदर्ड नहीं है। जो हमारी जनरेशन थी, जो थर्ड थी, उनको था भी सर्वाइवल करना है, जो वर्ल्ड वॉर और जंगों से फिर मर मुर के उन्होंने बोला भाई सर्वाइव करना है। फिर उसके बाद जब आया जो सेकंड जनरेशन थी, उनके बाद जो हमारे माँ बाप थे, उनको पता था कि भाई हमने अभी इनकी लाइफ अच्छी करनी है, अपने बच्चों की, हमारा थोड़ा सेटअप अच्छा हो गया, वैसे अभी हमारे और आगे जो बच्चे हैं उनको तो सब कुछ अभी पका पकाया मिल रहा है। तो ऐसे उनकी मेंटालिटी कंप्लीटली डिफरेंट है। लेकिन वो भी ज्यादा जो इंजीनियर डॉक्टर बनते थे ना, उन्होंने आना फिर अगला स्टेप बाहਰ ही ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ इंजीनियर बन गया, ਹੁਣ ਬਾਹਰ किते अप्लाई कर, दो चार कंपनियां जो काम कर लिया, अब बाहर जा। तो आना अगर उन्होंने एंड ऑफ द डे बाहर ही है, तो फिर इंजीनियर डॉक्टर का भी पाकिस्तान को कम ही फायदा है ना। और वहाँ भी जो इंजीनियर डॉक्टर भी हैं वो भी बस, यानी अगर आप इंजीनियर डॉक्टर की तरफ भी जाते हो ना, तो वहाँ पे जो पढ़ाई का अंदाज है वो भी सारा रटो रटू है। वो ये नहीं है कि भाई मैंने बड़ी खिदमत करनी है लोगों की, क्यों जी। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ घर ਦੇ ਕੋਲ डॉक्टर पता ही करता है, क्लिनिक है, उन्होंने और रश लगा होता है। सर 3 बोतलें हैं उसके पास इतनी ना, एक लाल रंग की है शरबत, एक सफेद रंग का शरबत और एक काला शरबत। उसने 3 बोतलें हर बंदे को ठोकी जानी है। बुखार है, नज़ला है, कैंसर है, एड्स है, जो भी वो 3 बोतलें हर वो बंदा आता है उसको वो उस डाल के ना, बंदे बेचारे को क्या बता, कौन सा कलर है? मरीज है, कौन सा कलर? रेनबो कलर। उसने वो 3 डाल के खाकी कागज में ऊपर 2 स्टेपल कर दे, ये पकड़ा, ये आपने दो सुबह 2 दोपहर 2 शाम ले लेनी है, खाने के बाद, खाने से पहले, खाने के बाद ले लेना। चलो जी बात ठीक है, सारी दुनिया को लगाया हुआ है। और मजे की गल है सारे घर जाते हैं जाके ठीक भी हो जाते हैं, क्योंकि मेंटली उनको पता है यार डॉक्टर साहब ने कुछ चंगी चीज दी है। और वो बड़ी बड़ी बोतलें, वो पता नहीं वो कुछ सैंपल आते होंगे क्या, वहीं से भर भर के दे ही जाता है हर किसी को। वो एक मशहूर नहीं हुआ था पाकिस्तान में, वो एक बता था, उसका नाम, डॉक्टर का नाम ही टीका डॉक्टर डाल गया। वो जो आता था उसको टीका ठोक देता था। भाईजान वो जो मरीज आ रहा है टीका टीका टीका, तो लोग आने गया यार टीका ठोक दे, लोग ठीक भी हो जाते हैं, क्या चक्कर है। और बाद में पता लगा वो कहीं नीचे बोतल होती थी उसकी ग्लूकोज की बोतल भरता था, टीका ठोक देता था। अब ग्लूकोज से ना आपके थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है, तो वो घर जाने तक बंदा यार डॉक्टर साहब माशाल्लाह बड़ी हाथ शफाई है। तो वो कहने का मकसद है, मैं ये नहीं कह रहा, बड़े बड़े जबरदस्त भी डॉक्टर्स बैठे हुए हैं जिन्होंने किया है, लेकिन डॉक्टर मुफ्ती का पता आपको? उधर है कोठे पिंड में। अच्छा, वो भी इसीलिए मशहूर था टीके के लिए ना, मुफ्त का टीके लगाता रहता है हर बंदे को। एकदम आप वहाँ बैठा हुआ अपनी बारी का इंतजार कर रहा हूँ, वहाँ से बच्चा एक आया, बंदा एक बच्चे को लेके आया खतने कराने भाईजान डॉक्टर के पास। हाँ, बच्चे की उम्र कितनी थी, तकरीबन 8-9 साल। अभी बेचारा कोई गांव पिंड का ना, डॉक्टर साहब खतने करने में। अच्छा वो डॉक्टर साहब ये मतलब टेबल जैसे आप बैठे हो, 7 स्टूल है और सामने सारी ऑडियंस बैठी है। डॉक्टर साहब ने भाईजान उसकी शलवार का थल्ले करो, शलवार नीचे की उधर ही जनाब, उसके बाप ने उसके हाथ पकड़े ऐसे करके बच्चे के। वो पेंडू था ना बेचारा, गरीब था, उसने कोई तीला डाला उसके अंदर, टक टक, ओ यार बच्चा मुफ्त बच्चे ने को गालियां नहीं गाली डॉक्टर को, माँ बहन की उधर ही। तो भाई ये अच्छा नहीं अब वो जमाना नहीं यार, अब तो इसी खतने पे अपना जो है ना पॉडकास्ट खत्म करते हैं भाई, ठीक है। खतने पे जो सा जनाब पॉडकास्ट का इख्तिताम करते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपके और आपके जो है ना, मैं रिपोर्ट कर दूंगा कि आप दोनों को जो यहाँ के सोशल सर्विस, क्या फायदा यार, अब क्या फायदा यार, कुछ फायदा तो अब तो निशान भी मिट गए देंगे ना, कम से कम अब तो वो जख्म भर गए हैं सारे। कोई नहीं यार, थोड़ा सा आपसे अच्छी ऐसी गुफ्तगू करेंगे यार। हमने एक खत्म करने से पहले 30 सेकंड की आपको वाकया सुनाई, इन्होंने कुछ बताया ही नहीं। आपने एग्जांपल गुड दे दी, आई एम अ वेरी बैड एग्जांपल। यस, इनको लाल किया हुआ है, मुझे लाल किया आप नहीं यार। अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल में भी कभी मार नहीं पड़ी, वालिदैन ने भी कभी ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा है, कभी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सख्त लौंडे नहीं आप। और ये तो इसीलिए आप सख्त लौंडे नहीं बने। दोस्तों में स्कूल में और वैसे लड़ाई होती है लड़कों से, ठीक है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं हुआ। वो भी नजर आ रहा है।
चलो अल्लाह जी पाक- अल्लाह पाक करम- ये खत्म करम करते है। हैं और इसके बाद हम इनसे लड़ाई करते हैं जरा चले ओके ठीक है जी ओके अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज